چلیے آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ جو سلائیڈ آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے اس پہ لکھا ہوا ہے اردو بے۔ اردو بے کا مطلب ہے گرامر۔ گرامر کا ایک اور لفظ قواعد بھی ہوتا ہے، یعنی جو ہم ایک اردو الف کا ہمارا پیپر بنتا ہے اور ایک اردو بے کا پیپر بنتا ہے۔ اردو الف میں ہماری ایک ٹیکسٹ بک ہوتی ہے جس کے اندر سب اسباق اور نظمیں وغیرہ ہوتی ہیں، جس میں تشریحات خلاصے وغیرہ آتے ہیں، اور گرامر میں ہم بناوٹ سیکھتے ہیں الفاظ کی اور ساتھ ساتھ جملوں کی ساخت کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کن اصول کو اپنا کر اچھی سی اردو سیکھنی ہے۔ آپ کا پہلا جو سبق ہے اس کا نام ہے لفظ، کلمہ، جملہ۔ مجھے امید ہے کہ سب بچے اس کو ان الفاظ سے بخوبی واقف ہوں گے، کیونکہ ہم نے اپنی جو پریویس کلاس ہے 4 کلاس، اس میں یہ تمام چیزوں کو تھوڑا تھوڑا پڑھا تھا۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ لفظ کے بارے میں آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہمارے منہ سے نکلی ہوئی جتنی بھی آوازیں ہیں وہ سب کی سب لفظ کہلاتی ہیں۔ ابھی جو بات ہو رہی ہے جیسے کہ آپ میری بات سن رہے ہیں، لیکچر سن رہے ہیں اردو بی کا، تو جو آپ میری آواز سن رہے ہیں، جو الفاظ میں ادا کر رہی ہوں، وہ سب کے سب لفظ ہے۔ یعنی اگر آپ میں سے کوئی بچہ اجازت لیتا ہے کہ ایکسکیوز می مس، یا آپ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے دوبارہ سے سمجھا دیں، کوئی بھی لفظ آپ اپنے گھر میں بولتے ہیں کہ مجھے پانی چاہیے، مجھے کھانا چاہیے، میں سونا چاہ رہا ہوں، مجھے کھیلنے کی اجازت ملے، تو یہ سب کے سب الفاظ جو ہیں وہ کہلاتے ہیں لفظ۔ اردو زبان میں لفظوں کو بیان کرنے کے لیے حروف تہجی استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے میں آپ کو الفاظ کی، لفظ کی ایک تعریف بتا دوں۔ عبد الرحمن بیٹا ویڈیو آف کر لیجئے۔ ہاں جی، تو بیٹے پھر میں آپ کو مجبوراً ان میوٹ کرنا پڑے گا، سوری، مجھے آپ کو ریموو کرنا پڑے گا۔ اب کوئی بچہ حسن، اگر آپ نے اب دوبارہ سے کھولی اپنی ویڈیو تو آٹومیٹکلی سسٹم آن ہو جائے گا اور پھر آپ ریموو کر دیے جائیں گے اس کلاس سے، ٹھیک ہے بیٹے؟ تو اب اپنی کوئی بھی اس طرح کی کوشش مت کیجیے۔ چلیے یہ دیکھتے ہیں جو تعریف آپ نے پچھلے کلاس میں پڑھی ہوئی ہے لفظ کی، وہ ہیں لفظ حروف سے مل کر بنتے ہیں، اور جو حروف ہیں وہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے الف سے لے کر یہ تک حروف تہجی ہوتے ہیں، جن میں مثال میں آپ کو دے رہی ہوں چھوٹی سی، کہ الف، سین، تے، الف، دال 5 حروف ہیں، ان کے ملنے سے ایک لفظ استاد بنتا ہے، اور یہ تمام حروف جو ہیں وہ حروف تہجی کہلاتے ہیں۔ حروف تہجی کو ایک دفعہ اس کی اعادہ کر لیا جائے، یعنی اس کو دہرا لیا جائے۔ حروف تہجی اصل میں کیا چیز ہے؟ یہ اردو کی بیس ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میتھ اور ریاضی وغیرہ آپ پڑھتے ہوئے، تو اس کی ایک بیس ہوتی ہے کاؤنٹنگ، جو کہ آپ بچپن میں شروع میں جب آپ پڑھنا لکھنا سیکھتے ہیں تو آپ کاؤنٹنگ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہماری ایک لینگویج ہے انگلش، اس کے ہم جب شروع میں اس کا آغاز کرتے ہیں پڑھنے کا، تو پھر الفابیٹ سے یعنی ABCD سے اس کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اب اردو گرامر میں، اردو لینگویج میں ہماری جو بیس ہے، بنیاد ہے، وہ ہماری حروف ہے۔ حروف کون سے ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ الف، بے۔ اب سب بچے اس کی ترتیب کو غور سے دیکھیے گا، کیونکہ اگلا جو لیسن میں نے آپ کو سکپ کروایا ہے وہ اسی کی بیس ہے، یعنی حروف تہجی جب تک آپ نہیں سیکھیں گے آپ کی جو بیس ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہو پائے گی، آپ کے آئیڈیاز ہیں وہ زیادہ برائٹ نہیں ہو پائیں گے۔ سو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ ٹیچر ہمیں 5th کلاس میں آتے ہی الف بیس پڑھانا شروع کر دیا۔ بیٹے یہ اس کی ایک خاص مقصد ہے جو آپ کو آگے چل کے سمجھ آئے گا۔ تو آپ نے یہاں پر الف سے لے کر یہ تک جو بھی حروف نظر آ رہے ہیں، جو بھی حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں بیٹے، وہ حروف تہجی ہیں، اور یہ ایک خاص ترتیب سے لکھے گئے ہیں۔ جو بھی چیز آپ سیکھیں گے وہ ایک خاص ترتیب سے ہوتی ہے۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو اپنا پہلا سبق کی سلائیڈ شو کرائی ہے لفظ، کلمہ، جملہ، تو
इसकी ख़ास तरतीब का एक ख़ास मकसद है। ये लफ्ज़ पहले है, कलमा बाद में है और फिर जुमला है। लफ्ज़ जो है वो दो हरफी भी हो सकता है। कलमा जो है वो सिर्फ वही कलमा होगा जो कि बामायनी होता है, और इन कलिमात का मजमुआ जो है वो जुमला कहलाता है। सो दैट हमारी ये जो तरतीब है उसका एक ख़ास मकसद होता है। जो भी सबक हमने पढ़ा है वो ख़ास तरतीब से पढ़ा जाएगा। तो इसी तरह बेटा हमारी हरूफ तहजी की तरतीब है। सब बच्चों ने इसको मेरे साथ साथ पढ़ना है। अलिफ, बे, पे, ते। टे स्किप हो गया बेटा शायद गलती से, तो टे ज़रूर है। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो मैं अपनी इस गलती को रिमूव करने की कोशिश की जाएगी। आपने इसके ते के साथ जो से है उसके दरमियान में टे लगेगा। टे यानी ट्रक, टोपी वगैरह। तो टीवी भी बनता है टे से। ते, टे से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, से, सीन, शीन, सॉ, ज़ाद, तोय, जोय, आइन, गाइन, फे, काफ, 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 लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमजा, ये और फिर ये। तो ये नुक्ता वाली ये है, और ये आखिर में जो इसको याए हवस कहते हैं। तो ये हमारी दो है आपके सामने है। एक जो है वो अमूमन जो जिसको हुक वाली है आप कहते हैं, जिसके नीचे एक छोटी सी साइन लगा करता है, ये वो वाली है। जैसे हम कहते हैं नादिया, और नादिया के आखिर में ये वाली है आती है। इसी तरह हिरन वगैरह का लफ्ज़ है, तो हिरन जब हम लिखते हैं तो उसके नीचे भी एक हुक बनती है। तो ये जो गोल वाली है उसको ये उस मकसद के लिए है, और जो दो चश्मी है ये हमारे हमेशा लफ्ज़ों के दरमियान में आएगी, ये कभी भी शुरू में नहीं आती। इसके अलावा दो चश्मे है वाले हरूफ हैं, वो अभी हम उस पर अभी बात नहीं कर रहे, उस पर हम बाद में बात करेंगे जब हम अपना फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे हरूफ तहजी वाला। अभी हम लफ्ज़ वाला पढ़ रहे हैं, तो आपने हरूफ तहजी की ये वाली तरतीब याद रखनी है। इन अल्फाज के मिलने से हमारे लफ्ज़ बनते भी हैं और तरतीब भी पाते हैं। यानी कि जब तक हम इन हरूफ को तरतीब से नहीं लिखेंगे तो लफ्ज़ नहीं बन पाएंगे। मतलब ये कि अगर अलिफ, सीन, ते, अलिफ, दाल की तरतीब इस तरह नहीं होगी तो ये उस्ताद का लफ्ज़ नहीं बन पाएगा। लफ्ज़ जो हैं वो हमेशा दो तरह के होते हैं, ठीक है। लफ्ज़ की दो किस्में हैं। ये आपके सामने आपको स्लाइड शो हो रही है, जिसमें एक बड़ा दायरा है, लफ्ज़ है, और ये आगे जाकर दो दायरों में मज़ीद डिवाइड हो जाता है, कलमा और मोहमिल। यानी कुछ अल्फाज हैं जिनके मायने होते हैं और कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके मायने नहीं होते। आप असल में अक्सर बातचीत में इशल बेटे अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए। इशाल वकास, अक्सर हम बातचीत में बोलते हैं रोज़मर्रा अल्फाज में, आओ चलो कोई खाना वाना खाएं, आओ चलो सैर वैर करें। तो इस तरह आम बोलचाल में हम सैर के साथ कुछ इजाफी लफ्ज़ बोलते हैं जिनको ग्रामर में मोहमिल कहा जाता है। सैर के साथ वैर का लफ्ज़, खाना के साथ वाना का लफ्ज़, ये ऐसे लफ्ज़ हैं जो बातचीत में तो इस्तेमाल होते हैं लेकिन ये अज़ खुद कोई मतलब नहीं रखते। यानी कि इनकी अपनी कोई ख़ास हैसियत नहीं है, ये हमेशा कलमे के साथ ही आते हैं। यानी कि कलमा होगा तो मोहमिल होगा, कलमा नहीं होगा तो मोहमिल नहीं होता। आइए अब कलमा की तारीफ देखते हैं। बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, यानी जिन लफ्ज़ों का कोई मतलब हो वो कलमा कहलाते हैं, जैसे चाय, पानी, झूठ। तो बातचीत में जब हम बोलते हैं कि चलो कोई चाय वाय पिए या मेरे लिए पानी वानी लाओ, अब वो झूठ मूठ रोने लगा। तो इस तरह जब हम बातचीत में लफ्ज़ की अदायगी करते हैं तो
वो लफ्ज़ जिनका कोई मतलब नहीं होता वो ग्रामर में मुहम्मिल कहलाते हैं, और जिनका कोई मतलब होता है वो कलमा कहलाते हैं। उम्मीद है कि आपको कलमा और मुहम्मिल की पहचान हो गई होगी, और इनका एक ख़ास मकसद भी समझ आ गया होगा कि ये हमारी आम रोज़मर्रा बोलचाल में किस तरह हम इनको इस्तेमाल करते हैं। एक दूसरी मिसाल के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि कलमा जो है वो कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। मेरे लिए पानी वानी लाओ, आओ बैठो चाय वाय पिए, वो लड़का झूठ मूठ रोने लगा, या अहमद का झूठ पकड़ा गया तो वो झूठ मूठ रोने लगा। अहमद शरारतें करते हुए पकड़ा गया तो वो झूठ मूठ रोने लगा, यानी अपने आप को बचाने के लिए झूठ मूठ का रोने लगा। मेरी आजकल अहमद से बातचीत बंद है। तो ये बातचीत जो है ये आम रोज़मर्रा के अल्फाज हैं। अब देखिए कि जो हमारे स्क्वेयर बॉक्स बने हुए हैं ये सारे के सारे बामानी लफ्ज़ हैं। बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, जैसे कि पानी, चाय, झूठ, बात। इनके साथ जो आपको पिंक कलर के दायरे में लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं वो जैसे कि वानी, वाए, मूड, जीत, ये ऐसे लफ्ज़ हैं जिनका आज खुद की इनकी अपनी कोई अलग से हैसियत नहीं है। ये सिर्फ तभी बोले जाते हैं जब इनके साथ कोई ना कोई लफ्ज़ लगा हो जो कि बामायनी हो। यानी बामायनी लफ्ज़ होगा तो मुहम्मिल होगा, अगर बामायनी लफ्ज़ नहीं होगा तो वो मुहम्मिल की अपनी अलग से हैसियत नहीं होगी, वो हमें बात जो है वो समझ नहीं आएगी। यानी अगर मैं सिर्फ ये बोलूँ कि वानी लेकर आओ, वाए पिए, मूड रोने लगा, चीत, तो ये अजीब सी चीज़ हो जाएगी जो कि हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। स्टूडेंट्स मैंने पहले ही कहा था कि जैसे ही हमारा टाइम होगा तो लास्ट मिनट्स मैं आपको दूंगी। आज हमने लफ्ज़ के ऊपर बहस की है। आपको 3-4 मिसालों के ज़रिए मैंने लफ्ज़ की ना सिर्फ तारुफ कराया है बल्कि उसको समझाने की कोशिश की है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। और अब आपसे मैं थोड़ा सा बातचीत कर ली जाती है। क्वेश्चन सेशन आपका शुरू हुआ जाता है। तो आज हमने सीखा है कि बामानी लफ्ज़ जो हैं वो क्या होते हैं। लफ्ज़ हरूफ से मिलकर बनते हैं। हरूफ हमारे हरूफ तहज्जी जो है वो कहलाते हैं हरूफ। इन हरूफ को जब तरतीब से लिखते हैं तो कोई ना कोई लफ्ज़, जैसे कि अलिफ, सीन, ते, अलिफ, दाल, 5 हरूफ हैं, इनके मिलने से एक लफ्ज़ उस्ताद बन गया। हरूफ तहज्जी का तारुफ आपने सीख लिया। हरूफ तहज्जी के साथ जो लफ्ज़ हैं वो आपने सीखे कि लफ्ज़ जो हैं वो हमेशा 2 तरह के होते हैं। बामानी लफ्ज़ों की पहचान के लिए मैंने आपको ये वाली स्लाइड दिखाई है। बामानी लफ्ज़ हमारे आम बोलचाल में बोलने वाले लफ्ज़ हैं जिनके बोलने से हमें कोई ना कोई हमारे जहन में उसका इमेज बन जाता है, जैसे पानी है, चाय है, बात है, झूठ है। यानी ये ऐसे लफ्ज़ हैं जिनका कोई मतलब होता है, और जब हम ये लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारे जहन में कोई ना कोई इमेज क्लियर हो जाता है कि क्या चीज़ बोली जा रही है। मुहम्मिल वो लफ्ज़ हैं कि जब बोले जाएं तो हमारे जहन में वाज़ेह नहीं होता कि क्या चीज़ कही जा रही है, क्या बोला जा रहा है। ठीक है, यानी कि जब बात समझ आ जाए तो वो लफ्ज़ है बामायनी, और जब बात समझ ना आए तो वो बेईमानी लफ्ज़ हैं। तो आखिर में ये बात कही जा रही है कि बामानी लफ्ज़ होगा तो मुहम्मिल होगा, यानी कलमा होगा तो मुहम्मिल होगा। अगर बामानी लफ्ज़ नहीं होगा तो इस मुहम्मिल की बेमानी लफ्ज़ों की अपनी कोई हैसियत नहीं होती। इंशाल्लाह कल मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगी कि हमने होमवर्क कैसे करना है,
ہوم ورک کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ اپنی ورک بک کو کیسے پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے بیٹے؟ تو کل تک کے لیے اجازت ہے. خدا